Hello, everyone, and a warm welcome. I am Tanvi, and we at Kotak Securities welcome you to our today's webinar on current market outlook. This will be followed by a question and answer round by the end of the session. So, now, without any further delay, let me introduce you to our speaker, Mr. Shrikant Chauhan and Mr. Amol. Mr. Shrikant is a head of research at Kotak Securities. Please join me in welcoming him. Over to you, sir. Thank you, Tanvi. Good evening, everyone, and warm welcome of everybody. Today, we are here to discuss what products the Kotak research team is offering, which are the significant one. I'm going to say which are the most most useful for the traders as well as for the investors, or even for those who are like taking some positional calls in the market. Also to discuss about trading calls, trading categories, how effective they can be, how effectively one can use those trading calls, and how to place a stop loss for each trade. So we are going to focus on all these categories. Especially we are going to focus on the stop loss on each trade. Also, we will cover the market outlook because it is the most important and the core part of the webinar. And number of our participants, even clients, they are trying to understand that what is happening in the market. The market is not going anywhere, it is in the range. So we'll discuss that in the detail. But prior to that, we'll try to explain about the products, about the trading calls, about the segments that we are using, and how effectively you can use those categories. Today with me, Amol Athawale is also there with me, and is with Kotak since last 15 years, and is having expertise in giving short-term and positional calls. So he will also help you in understanding how you can use trading calls that we are generating on intraday basis and very frequently during the day, or most of the time we give calls with a view of next 4-5 days. So all these things he will cover in detail. So let's start with the today's webinar. And very first, I would like to explain you about the products that the Kotak is offering. We give research based on fundamentals, based on derivatives, based on technicals. But I'm not going to discuss about almost all the things which are there, but we are going to discuss about those products which are very useful for intraday traders, for those who are like trading during the day. तो आज हम जो भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे उसका एक इम्पॉर्टेंट बेस हम ये रखेंगे, और हमारे जो हम लोगों ने जो सोच के रखा है आज के लिए, वो यही सोच के रखा है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आज के जो है, और जो हमारे क्लाइंट्स है जो इंट्राडे बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए जो हम इतने सारे प्रोडक्ट्स जो जनरेट करते हैं, उनमें से कौन से प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल है. आई थिंक अगर आपको पता चले तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये जर्नी काफी कंफर्टेबल रहेगी और काफी मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल भी रहेगी. तो वेरी फर्स्ट अगर मैं फंडामेंटली अगर बात करूं तो आपको लगेगा कि शायद फंडामेंटल के प्रोडक्ट्स इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे काम में आएंगे, लेकिन हमने कुछ सेगमेंट्स ऐसे बना के रखे हैं कि जहां पे हम उन स्टॉक्स को कवर करते हैं कि जो स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे कुछ अच्छे वैल्यूएशंस पे आते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर वैल्यूएशंस वी कम आउट विद सम रिपोर्ट्स. समटाइम व्हाट हैपेंस कि देयर इज वी because of the fundamental change, we change the recommendation. I'm going to say from buy to sell or from sell to buy. So upgrading or downgrading the stock is also a big event. And if we can capture those events, and if we showcase that particular event to our clients, then I'm very much sure that you guys can make very good out of it. So what I'm going to say is that all these reports are very, very important. You need to just focus and see. For intraday traders, the first and foremost important thing is that they have to focus on what are the flows to which they are going to face.
So during the day, there are like multiple flows to which we have to face. Some flows comes from the channels, some flows comes from the WhatsApp, or sometimes we get flows from the Twitter also. Uh, we also publish a few reports during the day, so those are also very very important, and also trading calls. So फंडामेंटली अगर देखें तो सबसे पहले अगर आपको फोकस अगर करना है तो अपॉर्चुन करके एक प्रोडक्ट है, और अपॉर्चुन प्रोडक्ट में हम लोग उन स्टॉक्स को कवर करते हैं कि जो स्टॉक विदाउट एनी रीजन मार्केट के साथ करेक्ट होते हुए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो आईटीसी पकड़ लीजिए कि जिस दिन आईटीसी का रिजल्ट आया था दैट डे द आईटीसी वाज कोटिंग एट 280 एंड उसके नंबर्स काफी अच्छे थे, तो टारगेट था कुछ 310 का। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, because of some weakness in the market, stock fell to the levels of 265, and that day we came out with a report on the ITC in the category of opportune. So let me just share that particular report with you. You will come to know that how actually we generate the report and how it is important for you. Wait a minute. See, so this one is the report on ITC. After like some days after the announcement of the result, after 2-3 days, the stock fell to the levels of 265, and we came out with the report. That time it was at 267. From there, all the way again, it came back to the levels of 275, 280. But on the same day, the stock moved to the levels of 270, 272. So it is more than enough for intraday traders to take the advantage of the report, and based on the report, one can trade in the market. Okay. Now, if we just go through with a few other reports, then in that we also generate report on the events, major events, on which we discuss that if there is any change in the fundamentals or change in the recommendations, like from buy to sell or sell to buy, that time also we cover few stocks. And in that particular category, wait a minute. Wait, show all the windows. Then only I can show the report. Okay, I'm not able to see that report, but give me some time. It's okay. Later on, I will. Okay, yeah, now the report is here with me. See, this one is the report. And we have given the name of rating monitor. What it means? It means that we try to cover those events where the rating is changing. And today, we generated report on the Oil India. When the report we published, that time the price was around 261, 262. और आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो तकरीबन 280, 282 के करीब की है, यानी कि कम से कम ये स्टॉक 20 रुपया आज के एक ही दिन में बढ़ गया था। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, ये जो रेटिंग्स चेंज होते हैं ये काफी बड़ा इवेंट है, और अगर आप इसे फोकस करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इससे बेनिफिट ड्यूरिंग द डे भी हो सकता है। और आपको इन सब स्टॉक्स के ऊपर फॉर द वीक, फॉर द मंथ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आज अगर स्टॉक चलना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि वो स्टॉक चलते हैं। अगर स्टॉक नहीं चला इट्स ओके, बट आपको इसी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है बिकॉज इसके फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। और अगर चेंज हुए हैं तो वन फाइन डे जब भी मार्केट में कोई मोमेंटम रहेगा, कुछ तेजी रहेगी, या समथिंग रिलेटेड टू क्रूड होगा, जैसे ऑयल इंडिया की बात कर रहा हूं तो अगर आईटीसी की बात कर रहा हूं तो अगर समथिंग रिलेटेड टू अगर कुछ एफएमसीजी के बारे में अगर आता है तो दैट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट एक्टिविटी इन आईटीसी वेरी फास्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग टुडे इवन फंडामेंटल रिपोर्ट्स आल्सो। चलो फंडामेंटल रिपोर्ट्स की अगर बात हो गई, इनमें ये दो रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इनिशिएटिंग कवरेज करते हैं, कुछ वन पेजर रिपोर्ट्स निकालते हैं जहां पे हमारे 12 मंथ्स के प्राइस टारगेट्स होते हैं, आप उनको भी ग्रो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो यूजफुल है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स वो है रेटिंग मॉनिटर एंड अपॉर्चुन। चलो इसके अलावा अगर मुझे कुछ देखना है इस मार्केट में तो मैं
आपके लिए ये कहूंगा कि जो टेक्निकली हम लोग कुछ 3 रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसमें से नंबर 1 रिपोर्ट है, वो है हमारा मार्केट मॉर्निंग। और मार्केट मॉर्निंग में हम लोग क्या कवर करते हैं, तो मार्केट मॉर्निंग में वी ट्राई टू कवर आउटलुक फॉर द डे बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स के बेसिस पे हम लोग कवर करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। बट वी गिव मोर वेटेज टू द निफ्टी बिकॉज फाइनली निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, इन दैट ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर कम्स। सो इसमें एफएमसीजी भी आता है, बैंक भी आएगा, इसमें आईटी भी आएगा, और एक ओवरऑल एक बैलेंस्ड व्यू के साथ निफ्टी में अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिलती है। वी ट्राई टू जज और ट्राई टू गेज द एक्टिविटी एंड वी ट्राई टू फोरकास्ट बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैटर्न ऑफ द निफ्टी चार्ट। और उसके लिए अगर आपको देखना है तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इंपॉर्टेंट लेवल्स इन द मार्केट, करेक्ट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर आप इस मार्केट में हो और अगर आपको मार्केट कहाँ रुकेगा, लाइकली कौन से लेवल्स है कि जहां पे ये मार्केट रुक सकता है, अगर आप उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर फोकस कर सकते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपके उसमें भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। जैसे कि आज के तारीख में हमने कुछ जो हमारे मार्केट मॉर्निंग ये जो है रिपोर्ट वो डेली बेसिस पे है। मार्केट वीकली जो रिपोर्ट है वो वीकली बेसिस पे आता है, एवरी मंडे आता है, जो आज हमने पब्लिश किया था। और अगर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको इस रिपोर्ट के अंदर जो कमेंट्री है उसके जो पॉइंटर्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पॉइंटर्स में हम लोग मोस्टली ये कवर करते हैं कि निफ्टी का आउटलुक क्या है, स्पेसिफिकली आज के दिन में निफ्टी कहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है, तो मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर मुझे कुछ और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर काम करना है तो वो भी हम हमारे ट्रेडिंग रेंज में उसे कवर कर लेते हैं। तो एक वाइड स्प्रेड रिपोर्ट होता है, प्लस 20 डेज एवरेज कहाँ पे है, 50 डेज एवरेज कहाँ पे है, ये सब लेवल्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप मार्केट के प्लेयर्स हो और आपको इन सब चीजों का नॉलेज तो होगा ही। वी आर जस्ट कवरिंग बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे से कुछ छूट जाए और हम लोग हमारे जो रिपोर्ट्स जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो फिर आपके अगर कुछ काम नहीं आएंगे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी वजह से हम टुडे वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द रिपोर्ट्स वेरी फर्स्ट। वेरी क्विकली एक बार मैं मार्केट मॉर्निंग को भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ एंड यू विल कम टू नो कि हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट आपने अगर शायद कुछ और अगर हमारे इवेंट अगर अटेंड किए होंगे तो आपको उसमें पता चला होगा कि हम इसे कैसे कवर करते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू शोकेस दैट रिपोर्ट, व्हाई, एनीवे। ये दिख रहा है क्या अभी अमोल? नहीं सर, नहीं आ रहा है। नो ना, वेट, अभी आ जाना चाहिए। अभी दिख रहा है सर। सो मार्केट मॉर्निंग में क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि मार्केट की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट एवरेजेस कहाँ पे है मार्केट के, प्लस मार्केट का ट्रेंड कैसे क्या है करके, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप डाउन जो भी है वो दिख रहा है आपको। और फाइनली इंपॉर्टेंट पार्ट जो कोर पार्ट है वो है निफ्टी की कमेंट्री। आज हमने यही बात की थी कि निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो बन रहा है वो है 16,440 450 का जोन है। और अगर इसी लेवल्स के करीब अगर आके किधर अगर निफ्टी रुकती है तो निफ्टी में एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। रिबाउंड पे हमें खरीदना था और आज हमने यही किया कि लाइक इन द मॉर्निंग मार्केट वाज डाउन। After some time we saw that the market was not falling below the levels of 16,450 400, which actually helped the clients, because after that we saw the market recovering back to the levels of 16,600, which is certainly like helps to intraday traders, because then they can buy some stocks and they can initiate trades in those sectors where they are seeing some action. Like today we saw action in all the IT companies,
in a few metal companies because they also recovered from the lower levels. We saw some short covering in all the metal companies, and towards the end, we saw some activity in Adani Group stocks, so which are like highly momentum stocks where we are seeing a lot of momentum. तो आपको important क्या है कि इस commentary के through just आपको important pointers को note करके रखना है कि which are the important levels and strategy that we are advising. तो अगर आप इन सब लेवल्स पे अगर आप फोकस करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपके जो भी इंट्राडे के जो भी ट्रेडिंग सेटअप्स आपको जो डिसाइड करने हैं वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे. एंड फाइनली अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग टूल ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, एक काफी यूजफुल प्रोडक्ट हम जनरेट करते हैं. और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको काफी क्लियरली समझ में आएगा कि इसमें एक ये पाइवट टेबल नहीं है. वेरी फर्स्ट, so it is not similar to the pivot table. It is based on some beta of the stock. It is also based on the trend levels of the stocks, and based on that we design the levels for the day. So अगर हम रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस का अगर आप ट्रेंड देखते हो तो रिलायंस का जो ट्रेंड इसमें दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. यानी आपको इसमें अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको उसमें बेनिफिट हो सकता है. और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप वो भी आप देख सकते हो. सपोर्ट्स हमने दिया हुआ है अचीवेबल कि जो मार्केट में अगर मार्केट में कोई वीकनेस अगर आती है तो ये स्टॉक कितना गिर सकता है. ओके और बहुत ही एक्सट्रीम केस में अगर स्टॉक गिरता है तो मे बी 2684 के लेवल्स वो दिखा सकता है जो आपको इधर लास्ट सपोर्ट के लास्ट कॉलम में दिख रहा है. सिमिलरली रेजिस्टेंस के साइड पे अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम if there is any rally in the stock then 2770 2800 also can be possible. So ये जो लेवल्स है आप इन लेवल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो. वैसे ये जून 3 का रिपोर्ट है तो आपको जून 3 का रिपोर्ट ये जो बना हुआ है इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली आपको कैसे हेल्प करेगा ऑन द फॉर व्हाइल ट्रेडिंग ड्यूरिंग द डे. ओके देन आफ्टर दैट इसका जो ट्रेंड है आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग वीक. तो जैसे एचडीएफसी है वो वीक ट्रेंड में है, एलएनटी वीक ट्रेंड में है, लेकिन ओएनजीसी अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में दिख रहा है. इट मींस दैट कि मार्केट में कुछ एक स्टॉक्स वीक है और कुछ एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग है. आपको किस तरफ ट्रेड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो. जैसे कि एमएनएम थोड़ा वीक ट्रेंड दिख रहा है, मारुति वीक ट्रेंड दिख रहा है, टाटा मोटर्स वीक ट्रेंड दिख रहा था. Why? Because अगर आप देखेंगे तो इन लास्ट फ्यू डेज वी सॉ रैली इन क्रूड प्राइसेस. और अगर ये जो मैकेनिकली जो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ हमारा जो ट्रेडिंग टूल है वो भी आपको वही इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्टर थोड़ा सा वीक हो रहा है बिकॉज क्रूड में लगातार एक तेजी बनते जा रही है. ओके एंड कुछ भारतीय है या एलआईसी हाउसिंग है या टाइटन रेमंड जैसे स्टॉक है कि जहां पे आपने देखा कि काफी सब्सटैंशियल ट्रेंड इस पर्टिकुलर वीक मंथ में हमने देखा है. ओके सो these are the stock, these are the products which we generate for those who are like traders in the market, and it is useful for those who are trading on a डे टू डे बेसिस ऑन इंट्राडे बेसिस. सो अगर आप इन रिपोर्ट्स का सपोर्ट्स लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा. ट्रेडिंग टूल और जो ट्रेडिंग टूल का जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग या वीक है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी मैकेनिकल्स. आई एम टू से इट इज एल्गोरिथम सॉर्ट ऑफ थिंग. और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विथ आर कॉल्स तो वो गलत होगा बिकॉज हम हमारे जो कॉल्स बनाते हैं ड्यूरिंग द डे वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एक्शन ऑन इंट्राडे बेसिस. अगर इंट्राडे में अगर कोई रीजन अगर पॉजिटिव अगर आ जाता है मारुति के लिए या तो फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि अदानी के लिए, तो हम लोग उसी बेसिस पे उसका कॉल जनरेट करते हैं विद सर्टेन स्टॉप लॉस. तो यू कैन नॉट कंपेयर our calls which we are giving in some other segments on which Amol will discuss, and he will give the idea about how to use those trades. But वो जो calls है और ये जो products है आप उसे प्लीज मिक्स मत कीजिए. ये दो अलग सेपरेट सेगमेंट्स है. जो आदमी जो ट्रेडर ओनली स्क्रीन को देख के ट्रेड करता है उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है. और हम मोस्टली क्या करते हैं कि अगर यानी कि अगर मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर रहूंगा तो व्हाट आई विल डू इज दैट अगर मार्केट बहुत जोर से अगर नीचे आ रहा है तो मैं एक्सट्रीम सपोर्ट्स पे ध्यान रखता हूं
वहां पे मैं कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स ले सकता हूँ। और अगर मार्केट अगर काफी ऊपर अगर खुला है गैप से, तो मैं एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पे फोकस करता हूँ, और उस लेवल्स के आसपास अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मैं एटलीस्ट लॉन्ग ट्रेड नहीं लेता हूँ, वहां पे थोड़ा बचना चाहिए, या तो वहां पे मैं इनफैक्ट शॉर्ट ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो दिस इज हाउ लाइक यू कैन यूज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिंग टूल। ओके, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड द टेक्निकल एंड फंडामेंटल पार्ट्स। डेरिवेटिव्स में देखें तो डेरिवेटिव्स में भी हम लोग एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स इन्फोस्केप। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर्स का जो पुट कॉल रेशो है, मार्केट का जो पुट कॉल रेशो है उसे कवर करते हैं। जो गेनर्स होते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शंस, बेस्ड ऑन फ्यूचर्स, या तो जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, हम उन सब स्टॉक्स को उसके अंदर जस्ट एज अ समरी कवर करते हैं। प्लस हम लोग एक व्यू बनाते हैं कि बेस्ड ऑन ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स कौन सा स्टॉक कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो आपको ये भी प्रोडक्ट मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल हो सकता है। सो प्लीज गो थ्रू विथ ऑल दिस रिपोर्ट्स एंड बेस्ड ऑन योर the overall behavior that you follow while trading in the market, आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट यूजफुल है, और उस प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे आप यूज करते जाओगे तो यू विल कम टू नो कि आपका जो ट्रेडिंग सक्सेस है वो और बढ़ रहा है। ओके, सो अभी व्हाट आई कैन डू इज दैट, see I have covered almost all the products from all the segments, fundamentals, technicals, as well as derivatives. So now I will hand it over to Mr. Amol, who will give you idea about the categories which we use while giving the trading calls in the market. Over to you, Amol. Yes, thank you, Sekhan sir. I think it is very nice and simple presentation about the reports. I think one of the most one thing which I like in Market Morning, the first is very simple and it is very easy to understand. And बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रिप्लाई देते हैं कि no, it is so useful. So and another one, your fundamental report rating जब change होता है generally, that is I think the most crucial and important reports for me, because sir I think जब आपको लगता है कि जब बाय से सेल होता है या सेल से बाय होता है कभी भी रेटिंग, सो डू यू थिंक कि बहुत बड़ा कुछ मेजर चेंजेस होता है इसकी वजह से इतना रेटिंग चेंज होता है, या इट इज जस्ट जनरल कुछ छोटे assumptions पे भी होता है? सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट ऑन दैट सब्जेक्ट आल्सो. Okay, see, like it's a good question because see, these rating monitor or opportune products, they are completely based upon their fundamentals of the company. So अगर फंडामेंटल्स में अगर कोई ड्रास्टिक अगर चेंज आता है, फॉर एग्जांपल टाटा केमिकल्स है, और टाटा केमिकल्स में हमने हमारी जो प्रीवियस रेटिंग थी वो सेल की थी, और उसे हमने चेंज करके हमने उसके बाय में कन्वर्ट कर दिया. व्हाई? बिकॉज अचानक से सोडा ऐश में काफी बड़ी तेजी हुई, और उसके बाद जो उसके फंडामेंटल्स थे वो चेंज हो गए, एंड जो इबिटा था उसका, वो इबिटा ऑलमोस्ट 50-55% से बढ़ गया था. तो जब अगर कोई स्टॉक में कोई टर्न अराउंड अगर आता है, और उस टर्न अराउंड के पॉइंट पे ही अगर आप एक्शन लेते हो मार्केट में, तो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट एक इवेंट हो जाता है, और उस इवेंट पे आपके पैसे बनने की प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज बहुत हाई होती है. तो जैसे आईटीसी ने काफी अच्छे नंबर्स दिए, और सिगरेट के मार्जिन्स में उसने जो एक इम्पोर्टेंट जो एक जंप बताया उसने, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था. लेकिन अगर ऐसे कुछ अगर इवेंट्स आते हैं तो हमें रेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है. और ऑयल कंट्री, जैसे आज हमने उसके ऊपर एक ऑयल कंट्री, ऑयल इंडिया के ऊपर हमने रिपोर्ट निकाला था, या ओएनजीसी के ऊपर रिपोर्ट निकाला, उसमें भी सिमिलर पैटर्न था कि सेल रिकमेंडेशन चल रहा था, वहां से हमने उसको टर्न करके बाय में कन्वर्ट किया. और उसका लॉजिक यही था कि अब तक जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस थे, वहां पे जो एक जो मैं बोल सकता हूँ कि साइडवेज एक्टिविटी बनी थी, उसमें एक मोमेंटम आ गया था, और अचानक से जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस थे उनमें हमने काफी बड़ा एक जंप देखा. एंड बिकॉज ऑफ दैट जंप, जो इनका इबिटा था वो ऑलमोस्ट हियर ऑल्सो 60-70% से बढ़ गया था. और इन द नियर फ्यूचर, इन नेक्स्ट 2 years ऑफ टाइम, वी आर एक्सपेक्टिंग इबिटा टू डबल. सो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं. अगर आप उस इवेंट्स को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मुझे फंडामेंटल समझने की जरूरत नहीं. मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मेरे क्लाइंट्स के लिए मुझे ये बताने का है, जो मेरे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो कैश में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको रेटिंग मॉनिटर अगर आ गया है, आपको दिख रहा है कि प्राइस 261 का दिया हुआ है, अभी प्राइस चल रहा है 265, और स्क्रीन देखने के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट में मोमेंटम है और इस स्टॉक में लगातार मोमेंटम बना हुआ है,
तब आप कुछ पोजीशंस ले सकते हो विथ कॉन्फिडेंस। अगर आपको आईटीसी का रिपोर्ट आ गया, आईटीसी में प्राइस चल रहा है 267, करंट मार्केट प्राइस भी चल रही है 268, 269, यू कैन ऑलवेज टेक ट्रेड इन द मार्केट, बिकॉज जहां पे भी फंडामेंटल ट्रिगर्स आते हैं वहां पे मैंने देखा है कि कई बार मार्केट में अच्छा खासा बाइंग भी आता है। Okay, very interesting, sir. Yeah. I think now we move towards the technical. Already, I think research part covered, research reports part covered by Srikanth sir. अभी हम कॉल कैटेगरीज में जाते हैं कि एज अ टेक्निकल डेस्क कितने कैटेगरीज में हम कॉल देते हैं। तो जनरली हम लार्जली 7 ब्रॉड कैटेगरीज में हम कॉल देते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, कोई पूछ सकता है कि इतने सारे कैटेगरीज क्यों होते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर एंड दे वांट दैट काइंड ऑफ कॉल्स। कोई डे ट्रेडर है, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेडर है, कोई ऑप्शन ट्रेडर है। सो ट्रेडर्स में अगर हम आगे जाते हैं तो देर आर लॉट ऑफ वराइटीज विच आर अवेलेबल, और वो सही भी है। हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक का फॉर्मेशन अलग है, हर एक का ट्रेडिंग पैटर्न अलग होता है। सो बेसिकली हम पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देते हैं इंट्राडे रिकमेंडेशन, जो MIS कैटेगरी में आता है। MIS कैटेगरी में डे ट्रेडर के लिए आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फैक्टर इज द टाइम फ्रेम। सो कोई डे ट्रेडर्स में अगर हम जैसे देखते हैं कि कोई ओपनिंग पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको मार्केट ओपनिंग मोमेंटम पे जो वोलेटिलिटी रहती है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी रिस्की टू ट्रेड, बट समहाउ आर वेरी मच स्पेशलाइज ऑन दैट, कि जो न्यूज बेस होता है, जो इमोशन बेस होता है, वहां पे लोग ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो एक कैटेगरी हम लोग इनकैश करने का कोशिश करते हैं। सो एक प्री ओपनिंग हम ट्रेड्स देते हैं, 2 जनरली, कभी कभी 3 देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस की कैसा है। अगर एकदम एक्सट्रीम है सो वी ट्राई टू अवॉइड, बट जनरली वो एक टाइम फ्रेम ऐसा लगता है हमको कि जो अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, और वहां पे काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। तो वो एक इंट्राडे में हम लोग प्री ओपनिंग 2 कॉल्स देते हैं जनरली। उसके बाद एक अगला टाइम फ्रेम आता है जहाँ पे मार्केट काफी सेटल डाउन हो जाता है। 1 आवर के बाद, एक 10 सवा 10 बजे के बाद, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मॉर्निंग सेंटिमेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद एक जो भी लोगों के थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए होते हैं, मार्केट एक सैचुरेशन पॉइंट्स पे टर्न होता रहता है। तो वो टाइम पे कुछ ट्रेंड फॉलोअर्स ट्रेडर होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा ट्रेडर्स होते हैं, ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन हिज ट्रेडिंग फॉर्मेशन एंड ट्रेडिंग पैटर्न्स। तो वो जो कैटेगरी होती है, वहां पे एक अच्छे खासे ट्रेडर का इंटरेस्ट और अच्छे खासे ब्रेकआउट ट्रेडर्स वहां पे इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है दैट वी हैव ऑब्जर्व। सो एक 10 बजे का हम लोग एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं जहाँ पे ट्राई टू गिव अ कॉल। वी आर नॉट गिविंग एवरी डे इफ इट मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग समथिंग लाइक रशिया यूक्रेन जैसा कुछ मार्केट है जहाँ पे हम नहीं दे सकते, वी ट्राई टू अवॉइड। यस सर। Yeah. So Amol, Yeah. you mean to say that you are giving few calls before the market? Yes, Okay. yes. So I mean to say that on a regular basis. Yeah. Yeah, because a lot of people like slightly confused on that. Yeah. It's a pre-open market call which we Correct. generally execute between 8:50 to maximum 9:05 before Yeah. pre-opening rate settle. So before the market starts, Yes. I can see those calls, right? Yes, obviously. That Right. too. And at 10 o'clock also, Yes. You try to give a few more calls. Depends Exactly upon, at 10 yes. o'clock. Means Yes, but there is between 10 to 10:15. 10 to 10:50, maximum 10:30. But Yeah. we feel that the time frame is very good for day trader, because Correct. if you most of the traders share the experience, if they get enter in that 10 to 10:15 time frame, then I think the entire day was open for them. So they can even trade twice, thrice in a day. So they have enough time. So generally they prefer to go and enter at around 10 to 10:50. And it's good if I'm getting the calls based on time. Yes. Then I need not have to wait for the day, for the whole day. कि when Yes. the call will come. मुझे पूरा दिन ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं कि अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा। मैं अगेन 10 to 10:30 के टाइम फ्रेम में बैठा रहूंगा और मैं देखूंगा कि कॉल्स किधर आ रहा है। सो माय जो वेटिंग पीरियड है वो मेरा काफी कम हो जाता है। Correct. Which is really good actually. I think it is something which is really unique because I don't think that it is there in the industry. इंडस्ट्री में मैंने देखा नहीं कि और कोई ब्रोकिंग फर्म है जो कुछ ऐसे टाइम बेस्ड कॉल निकालता है करके। करेक्ट। गुड। वो काफी इफेक्टिव हो रहा है। अभी कभी कभी सिचुएशंस में थोड़ा गड़बड़ आ जाता है,
बट लार्जली अगर आप बड़ा पिक्चर देखते हो तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव टाइम फ्रेम फॉर मी। Yeah. और तीसरा जो कैटेगरी इंट्राडे में हम देखते हैं वो होता है कुछ मोमेंटम बेस होता है, जैसे कहीं बड़ा रेंज ब्रेकआउट आता है या बड़ा कोई टेक्निकल ब्रेकआउट आता है या बड़ा कोई रिवर्सल आ जाता है स्टॉक में, सो देन ओनली वी ट्राई टू इनकैश दैट मोमेंटम। सो वो अगर कुछ मोमेंटम, बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है बिकॉज वी डोंट नो when actually it will trigger the momentum. So I think these are the three basic categories that we have selected for the day traders. The second category I have again is the 5-day positional calls. As you know, अभी जैसे रशिया यूक्रेन में अगर हम वो मार्केट का वोलेटिलिटी कंसीडर करते हैं, सो कोई ऐसे पोजिशनल ट्रेडर थे, दे डोंट वांट टू कैरी इवन देयर स्ट्रेटेजी इज प्रॉमिसिंग और ये, बट स्टिल दे वांट टू एग्जिट आउट ऑन अ डे बेसिस। सो ये पोजिशनल डे ट्रेडर वाला जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, सर आपने भी देखा होगा कि ये सेमी डे ट्रेडर और सेमी पोजिशनल ट्रेडर जो कंपल्सिव नहीं है डे ट्रेडिंग के लिए, बट इफ द मार्केट कंटिन्यू द मोमेंटम दे वुड लाइक टू कैरी दैट पोजिशन। सो एक काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और ये एक बहुत बड़ा कैटेगरी है बिकॉज लोग लेते हैं पोजिशनल व्यू से, बट इफ दे विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन डे ट्रेडिंग दे अगेन दे वुड लाइक टू बुक सम प्रॉफिट। ऑन द कॉन्ट्रा साइड, इन केस अगर ऐसा होता है कि डे ट्रेडिंग में लिया है बट ट्रेंड अच्छा है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है और पोजिशनली मोमेंटम अच्छा लगता है, पैटर्न अच्छा है, फॉर्मेशन अच्छा है, दे वुड लाइक टू कैरी दैट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो ये कैटेगरी ऐसा है जो वहाँ पे मोमेंटम प्लेयर्स काफी इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। तो आई थिंक 5 डेज पोजिशनल उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे हम डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ देते हैं, बट डिपेंड अपॉन द मार्केट डेली फॉर्मेशन, वीकली फॉर्मेशन क्या है, और जनरली वी आर फोकसिंग ऑन गुड क्वालिटी मिड कैप, गुड क्वालिटी फ्रंटलाइन स्टॉक्स ओनली। यहाँ पे हाँ अगर कोई कैरी भी करता है तो जनरली रिस्क whether you try to see that with this call should also work on intraday basis. I'm to say during the day also it gives some returns. जनरली मोमेंटम कॉल होता है, तो नेचुरली कॉल होने के बाद मोमेंटम तो आने का चांसेस तो काफी हाई है, बट उसका पोटेंशियल जो होता है, उसका फॉर्मेशन जो होता है, उसका प्राइस वॉल्यूम पैटर्न जो होता है वो इतना प्रॉमिसिंग होता है कि हमको लगता है कि ये 5 डेज तक मोमेंटम कैरी रह सकता है, 4 डेज तक रह सकता है, कभी कभी 3 दिन तक रहता है, बट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ मोमेंटम व्हिच इज मोर देन अ डे। सो वी जनरली ट्राई टू कैच दैट पिक्स इनटू द 5 डेज पोजिशनल कॉल्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे यूजर्स है वो 5 डेज कॉल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि 5 डेज है तो 3-4 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा। हम देखते हैं कि उसमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है और ये मोमेंटम फॉर अ लॉन्गर टाइम चल सकता है, बट सेम डे में भी आपको उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वी ट्राई टू कवर those companies where the liquidity is huge, humongous. ऐसा नहीं कि कुछ भी illiquid स्टॉक को पकड़ लिया और उसे हम ट्रेडिंग बेसिस पे और जल्दी से क्लोज भी नहीं करने वाले, सो दैट आपकी जो एंट्री होती है वो आप कंफर्टेबली एंटर कर सकते हो। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस कैसे क्या रखना है उसके ऊपर भी हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, लेकिन वेरी फर्स्ट ये कैटेगरीज को जानना जरूरी है। तो इट्स वेरी गुड। Yes. सर इसमें एक एडिशनल एग्जांपल आपको देता हूँ दैट आई हैव एक्सपीरियंस वेरी इन अ डिफरेंट मैनर। उसमें क्या हुआ था, जब इतना मार्केट वोलेटाइल होता है जहाँ पे एसजीएक्स 400 पॉइंट्स अप और 400 पॉइंट्स डाउन हो रहा है, तो लॉट ऑफ पोजिशनल ट्रेडर्स ऐसे बोल रहे थे हमको कि नो वी वुड लाइक टू ट्रेड ओनली फॉर, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द ट्रेड, इवन आई एम टेकिंग द पोजिशन आई वुड लाइक टू एग्जिट आउट। सो इवन अ पोजिशनल ट्रेडर शिफ्ट टू द डे ट्रेडर्स। और जहाँ पे ऐसा मार्केट था जहाँ पे लो वोलेटिलिटी, जैसे आज का मार्केट है, कल का है, नॉन डायरेक्शनल है, बट लार्जर टेक्सचर अभी भी अच्छा है मार्केट का, जहाँ पे डे ट्रेडर भी ऐसे बोलते हैं कि नो वीड लाइक टू टेक वन मोर डे चांस बिकॉज मार्केट वोलेटिलिटी इज वेरी न्यूट्रल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, दिस इज 5 डेज पोजिशनल और डे ट्रेडिंग में। ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं बट काफी इफेक्टिव लगते हैं हमको। थर्ड कैटेगरी इज द निफ्टी वीकली ऑप्शन ट्रेड, जहाँ पे हम आई थिंक ओनली निफ्टी कॉल्स ही ज्यादा फोकस करते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा कम करते हैं। आई थिंक वो एक निफ्टी वीकली ऑप्शन जहाँ पे हम ऑप्शन सीरीज जब सिलेक्ट करते हैं तो फोकस रहता है कि इमीडिएट वाला जो सीरीज है और उसका वैलिडिटी होता है रफली अराउंड 2 डेज 3 डेज में क्लिक होना चाहिए। इवन इधर इट हिट द स्टॉप लॉस और इट विल हिट द टारगेट। ओके, सो आई थिंक वो एक अच्छा फॉर्म है, हमको लगता है कि निफ्टी वीकली ऑप्शन
एक है. अगर just one point I would like to mention in that, if the expiry is too near and we feel that within one day, within half day, the momentum will not happen in the Nifty or in a Bank Nifty, तो हम वो सीरीज छोड़ के अगले सीरीज का दे देते हैं. बट डिपेंड करता है, अगर एक्सपायरी का बेट भी अगर कुछ अच्छा लगता है, जैसे ये वाले मार्केट में एकदम वोलाटाइल था, अराउंड 150-200 पॉइंट्स का वोलेटिलिटी अपने को दिखने को मिला. सो ऐसे केस में वो एक्सपायरी बेट आई थिंक काफी वर्क हो जाते हैं. बट इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. बट वो वीकली ऑप्शन ट्रेड भी आई थिंक एक इफेक्टिव टूल है. टेक्निकल ऑप्शन ट्रेड आई थिंक दिस इज फॉर द स्टॉक्स ओनली, not for the Nifty or not for the Bank Nifty. This is a separate, हमने उसको कैप्शन रखा है because people get confused sometimes कि कहाँ जाना है, तो we maintain a clarity on that. So एक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड में अगर हमको कोई लगता है जैसे रिजल्ट सीजन है जहाँ पे आप फ्यूचर नहीं ले सकते, या जहाँ पे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले रखा है, बट ड्यू टू अनसर्टन इवेंट दे जस्ट वांट टू हेज पोजीशन, या किसी को करना है कि कंट्रोल रिस्क में ट्रेडिंग करना है. So I think stock option would be the ideal strategies for them. So वहाँ पे अगर हमको लगता है तो ही देते, कंपल्सिव नहीं है मोस्ट ऑफ, बट हाईली लिक्विड स्टॉक्स ही प्रेफर करते हैं जनरली. निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो अगर वही हम प्रेफर करते हैं उसमें भी. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक टेक्निकल कैरी फॉरवर्ड एक ऐसा ट्रेडिंग करते हैं जो 3-3:15 बजे उनको जो लास्ट क्लोजिंग होता है उसमें काफी इंटरेस्ट होता है, और मार्केट ओपन जो होता है जैसे आपने देखा होगा ओपनिंग में जो गैप अप और गैप डाउन के बेनिफिट्स जिसको चाहिए वो भी एक ट्रेडर्स का अलग कैटेगरी है, और जहाँ पे वो मैक्सिमम उनका ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा ही होता है कि एंड में लेके जाए और ओपनिंग में निकल जाए, तो वो एक कैटेगरी को हम कवर कैरी फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड. टेक्निकल पोजिशनल करके है. अभी तक हमने जो भी सेक्शन बात की है, मतलब रफली अराउंड 5 सेशन हमने बोल दिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, इसके बारे में ही हम बोलते रहते. पोजिशनल ट्रेडर इट्स लाइक अ कैटेगरी ऐसा है जो मीडियम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में आते हैं. दे आर नॉट डे ट्रेडर्स. They generally take the position and would like to carry that position for the at least 1 week, 2 week time span. So उनके लिए अगर कुछ चाहिए जैसे बड़ा पैटर्न, बड़ा फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स पे होता है, या डेली चार्ट्स पे कोई रेंज ब्रेकआउट आता है, या कोई रिवर्सल बड़ा कप एंड हैंडल में बड़ा फॉर्मेशन जैसा है उसमें कुछ आता है, तो वो जब उसका प्राइस टारगेट भी बड़े होते हैं, तो वो ऐसा कुछ फॉर्मेशन आता है तो वो एक टेक्निकल पोजीशन में हम कवर करने का कोशिश करते हैं. विल ट्राई टू कवर दैट दिस पैटर्न आल्सो. ऑब्वियसली उसका टाइम स्पेन अगर आप पूछोगे तो जनरली 20-21 डेज का होता है. टारगेट अगर आप पूछोगे तो रफ डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, बट लार्जली आई थिंक द 7% to 12% मोमेंटम उसमें मिल जाता है. So, वो एक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे लगता है ये सब इसमें जो आई थिंक यस नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसका कम है, बट टेक्नो फंडा आई थिंक दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कॉन्सेप्ट जो श्रीकांत सर ने स्टार्ट किया था, एंड आई बिलीव वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. तो उसका लॉजिक ये है कि टेक द एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, कंपेयर विद द टेक्निकल्स, एंड इफ द ऑलरेडी बैलेंस शीट इज showing strong and technically the stock is available at the good support level, then it's time to encash. I think this is the very unique and promising concept. But yes sir, उसमें अपने को और we want some more calls on that of course. So अभी हम इतना नहीं ज्यादा दे रहे, but वो एक concept काफी interesting. Yes, so these are the 7 broad based concept generally हम वहाँ पे recommendations देते हैं. Now I think you all are looking or waiting for the what is the current market scenario and what would be the next future. Is this end of a bull run or it is just a temporary correction, you know? So I will hand over to Srikanth sir. Sir, please give us some advice. What we can do? Is this a correction or is this a end of bull run? Yeah, so I think everyone is waiting for the same, and I think one thing that we have to always keep in mind that it is very difficult to say that whether we are in the means after rallying too much, it is very difficult to say that whether we are correcting or whether we are entering into the bear phase. But while looking at the other markets like US markets, or if you compare our markets with other markets, then you will come to know that our markets have corrected lesser than the other markets. What it means that our markets are relatively much better than other markets.
even though there is selling from the FIs on a day-to-day basis, our domestic institutions, they are taking advantage of this particular sell-off. They are consistently infusing their funds in the market, and it clearly shows that retailers are confident. Even though we are seeing the crude is trading at 120, dollar is quoting at 102, 103. Indian rupee, which was around 75, 74 levels, from there all the way now it moved to the levels of 77.50. Even though domestic investors or even retail investors, they are infusing a lot of funds in the market, and because of that we are seeing market is holding well above the mark of 16,000. Yes, if something goes really wrong in the near term, what I meant to say is that if crude, which is currently trading at $120 per barrel, if that goes to the levels of 140, then the market can come down, because finally it impacts to our import bill. And if that is going to happen, then no one can like stop the market from falling to the levels of 14,000. But I'm not seeing those levels to come in the near term, because we are consistently I'm to say the government is in the process, and they are in touch with the top authorities. They are importing oil from the Russia. They are taking all the measures to support the economy. So what I'm to say is that government is highly active in supporting the economy, and they are keeping a very close watch on what is happening in the global markets. So अगर ये सब चीजों को अगर कंसिडर करते हुए अगर मार्केट में जो अपना फॉल है बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में अगर कम है, तो आप सोचिए कि इन केस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ लाइक देयर इज एनी सेटलमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, अगर वॉर स्टॉप हो जाता है, या तो अगर रशिया की विक्ट्री अगर हो जाती है, या तो अगर कुछ सोल्यूशन अगर निकल के आता है, और अगर क्रूड जो अभी 120 चल रहा है, इफ दैट फॉल्स टू द लेवल्स ऑफ 100, तो सोचो क्या होगा. देन अगेन द एफआईज विल स्टार्ट infusing money into the market. See, all this money which is going from our markets or from other emerging markets is all hot money. ये पूरा एक hot money यानी क्या कि एक short term basis पे यहाँ पे पैसा आता है, और ऐसा नहीं short term यानी कि कुछ महीनों के लिए. They stays here for longer period, for more than 4-5 years. और अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक उन्होंने जो माल बेचा है मार्केट में, वो अभी तक जस्ट 10% ऑफ देयर एंटायर होल्डिंग उन्होंने बेचा है. सो अगर वो 10% ही अगर बेचा है, तो 90% और आ सकता है, वो भी रिस्क है. बट एट द सेम टाइम अगर हम बाकी सब फंडामेंटल्स की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल्स पे आ चुका है. सऊदी ने ऑलरेडी कमिट कर लिया है कि वो प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, और अगर फ्यूचर में अगर और रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे लगता है कि ओपेक के बाकी कंट्रीज और क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. ऑल्सो अगर डॉलर की बात करें, तो यहाँ पे अगर जो यूएस फेड है, दे कैनॉट टेक हार्श स्टेप्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स so badly. I'm to say currently they are giving the prediction of 50 basis point. तो 50 पैसे जितना वो एवरी जो भी उनकी मीटिंग होगी उसमें वो इंटरेस्टेड बढ़ाएंगे, और ये ट्रेंड चलेगा. लेकिन दे कैन नॉट गो फॉर 0.75 बेसिस और 0.75 फॉर अ लॉन्गर टाइम. द रीजन इज बिकॉज अगर वो वैसा करते हैं तो वहां पे एक रिसेशनरी ट्रेंड आ जाएगा, एंड इफ दैट रिसेशनरी ट्रेंड कम्स तो फिर वापस उनकी जो इकोनॉमी है जो अभी ट्रैक पे आ चुकी है वो अगेन डीरेल होना स्टार्ट हो जाएगी. सो मुझे लगता है कि दे विल कीप वेरी क्लोज वॉच ऑन द नंबर ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन अगर कंसिस्टेंटली काफी जोर से अगर बढ़ गया बिकॉज ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर क्रूड अगर 140 हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर उनको कुछ और मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे. सो वो एक अलग इवेंट है ऑल टुगेदर, ओके, जिसके ऊपर हम लोग राइट नाउ सोच के कुछ फायदा नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हमें लगता है कि ये इवेंट होना बहुत मुश्किल है. और अगर इस इवेंट को अगर थोड़ा और कुछ अगर वक्त लगेगा तो हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा. मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा तो मार्केट की जो रेंज रहेगी वो 15,500 ऑन द डाउन साइड, 15,600 700 के लेवल्स हमने देखे थे. मुझे लगता है कि वर्स्ट केस अगर मार्केट में और कुछ अगर वीकनेस अगर आता है तो 15,500 तक मार्केट आ सकता है ऑन द हायर साइड.
17,000 यानी कि 16,800 to be very precisely 16,800 is acting as major resistance level for the market and it's a magic level. आपने देखा होगा कि कई बार whenever there is a fall in the market 16,800 के आसपास आके रिबाउंड हो रहा था. Once जैसे ही मार्केट ने 16,800 को तोड़ दिया उसके बाद हमने स्टीप डिक्लाइन देखी मार्केट में जो मार्केट को 16,200 तक भी लेके गई थी. सो ये मार्केट्स के जो लेवल्स है वो काफी इफेक्टिवली ये वर्क कर रहे हैं और उसका रीजन ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है एंड व्हेनेवर देयर इज अ रेंज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन द मार्केट आई मीन टू से द प्लेयर्स they focuses more on the technicals because मार्केट में भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है. फंडामेंटली दे कैन नॉट टेक द कॉल ऑन अ डे टू डे बेसिस. तो उनको टेक्निकली काम करना पड़ता है और टेक्निकल्स के बेसिस में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसी के करीब अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन इंटरेस्ट को भी लाइंड अप देखेंगे कि जैसे 16,800 17,000 में मैक्सिमम कॉल राइटिंग है और 16,400 16,200 के रेंज में मैक्सिमम पुट का राइटिंग है और इसी वजह से मार्केट इज इन द रेंज और मार्केट इसी रेंज के अंदर थोड़ा और ट्रेड करते हुए नजर आएगा. बट हमें लगता है कि इफ देयर इज एनी फॉल इन द मार्केट वी शुड लुक फॉर एडिंग गुड कंपनीज टू आवर पोर्टफोलियो. आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए साइड बाय साइड. कुछ अच्छे कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए. अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आई एम टेलिंग यू कि आप जब भी देयर इज अ पैनिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन द मार्केट यू ट्राई टू एनकैश दोज अपॉर्चुनिटीज. वो जब मार्केट में पैनिक आता है तब आपको लेवल्स के ऊपर फोकस करना है. जो हमारे रिपोर्ट्स आते हैं आप उस रिपोर्ट्स को वापस एक बार स्टडी कीजिए, रीड कीजिए. यू विल कम टू नो कि हम लोगों ने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात किया और उसी लेवल्स के करीब से अगर आपको मार्केट टर्न होते हुए दिखता है तो यू कैन एंटर इनटू द मार्केट एग्रेसिवली. तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है निफ्टी 15,500 17,500 के रेंज में रहेगा. अगर किसी रीजन से 18,000 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो ये 16,000 का जो लेवल बना था वो बॉटम हो जाएगा और हम लोग और भी ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं. बैंक निफ्टी आई थिंक 35,000 इंपॉर्टेंट लेवल है. 34,000 ऑन द डाउन साइड, 36,000 ऑन द हाई साइड. इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी क्रेडिट पॉलिसी जो अभी वेडनेसडे को है उसमें क्या आउटकम आता है उसके ऊपर भी काफी सारे ट्रेड्स डिपेंड रहेंगे. आई थिंक ये पूरे मार्केट की आई थिंक ओवरऑल एक जो व्यू था उसके ऊपर बात हो गई है. अभी मुझे लगता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है दे मस्ट बी वेटिंग फॉर आस्किंग अस फ्यू क्वेश्चंस. तो हम लोग तन्वी के पास जाते हैं एंड विल आस्क तन्वी टू लाइक just go through with the participants what exactly they want to understand or they want to know about the markets or about stocks. Yeah, then. Thank you so much. Anyway, I think there is. We'll the first question, which is. Okay. Yeah, can you hear me now? There is some disturbance in the Disturb. I'm so sorry. Okay. So we move on to Okay. audible now? Yeah, now very much clear. Yeah. So the first question is, which is the most promising sector in current scenario from medium or short term point of view? Okay. So the most promising sector that we consider is technology. And the reason is because it's a defensive sector, already fallen to the extreme levels from the extreme highs. 40,000 के करीब था निफ्टी आईटी इंडेक्स. From there all the way it has fallen to the levels of 28,000, 27,000, which is 40% of the entire rally that we saw from the lows of pandemic lows. So अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अगर करेक्शन को देखें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा करेक्टेड है. फंडामेंटली ऑल द कंपनीज आर रियली गुड. ऑल टॉप क्लास कंपनीज आर देयर. TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, etc. You just name the companies, all are good and we know all the companies. So वहां पे हमें लगता है कि एक बॉटमिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हो चुका है और हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर कुछ मोमेंटम अगर बनता है तो इन सब स्टॉक्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बनेगी. अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजीज हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में जो फोकस एरिया बना हुआ है वो है ऑटो. और ऑटो में अगर फोकस करना है तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि देयर आर फ्यू कंपनीज ऑन विच इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स आर रियली
very bullish. Like Mahindra and Mahindra is there, Tata Motors is there, Bajaj Auto. So these are the companies on which like one can give a close watch, and they can take some advantage of the overall activity which is there in the sector. Thank you, sir. So the next question is, please share your technical view on shares like IRCTC and ITC. You would like to answer. Okay, yeah. So IRCTC is like, I think it's a favorite of everyone. But nowadays the stock is not participating in the bull run of the market. I'm to say whenever there is a activity in the market, IRCTC is not participating. But for ITC, yes, ITC is showing a lot of strength, and above the levels of 275, it has hardly any major resistance. Right now, the stock is completely trading sideways, is mainly because it's a part of Nifty 50, and all the Nifty 50 stocks are under some selling pressure from FIIs, or because the overall market is in the range, they are not able to participate heavily. But in case if we see the stock is sustaining above the mark of 270, then we can even see the levels of 300, 310, which is also a technical level. And in the year 2018-19, the stock was around 310. From there, all the way the stock has fallen to the extreme levels. But currently, it is at 275, and we are expecting stock to move towards the levels of 310 gradually. For IRCTC, the important level is around 740, 45. So above this level, till the stock is not crossing 745, I think the stock is going to remain under pressure. On the downside, it has support around 600 and 560. So in case if we see the stock is dropping to the levels of 600 levels, we should be buyer. But otherwise, it is better to stay away from taking any specific trade in the stock. There are a number of stocks on which you can focus. Sir, just one question. Yeah. In ITC, I think the formation is strong. So do you think breakout strategy will work going forward for ITC? See, to take breakout trade in the stock like ITC looks very difficult because it's a very low beta stock. Yeah, but yeah, if there is a medium to long term view, or if there is a positional view, then certainly one should look for ITC, because we are expecting already the stock delivered very strong number. Overall FMCG sector is already started doing well, and in that, if the company is fundamentally strong, then we can expect further more upside. Technically also, the stock is trading into the zone where it has hardly any major resistance. So there are a number of factors which are like going to support the stock to move higher. Yeah, Tanvi. So the next question is, when will Nifty cross 18,600 again? When? ये मुझे पता होता तो फिर तो क्या बात थी, फिर तो मैं अभी से लेके रखता और बहुत सारे पैसे बना लेता. लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ा इवेंट आना चाहिए. Till that event is not near on the corner, मुझे लगता है कि तब तक मार्केट थोड़ा ऐसे ही रहेगा, साइडवेज ट्रेड करते रहेगा. अभी सबसे बड़ा इवेंट कौन सा आएगा, तो मे भी शायद मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त की जो क्रेडिट पॉलिसी होगी यूएस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर रहेगा. एंड दैट टाइम दे विल अनाउंस दैट वेदर दे आर गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग द रेट और नॉट. सो अगर वो बोलते हैं कि हम लोग पॉज लेंगे करके, तब हमें लगता है कि मार्केट एक अपवर्ड एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकता है. ऑल्सो ड्यूरिंग दिस 3 months कंपनीज कैसे परफॉर्म करते हैं, कॉर्पोरेट्स कैसे उनके बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, उसका भी मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा इन द मंथ ऑफ बाय द एंड ऑफ जुलाई. सो जुलाई में काफी सारे या तो अपग्रेड्स या तो डाउनग्रेड्स का सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन सकती है, और उस पर्टिकुलर फेज में हमें लगता है कि मार्केट एक या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में जा सकता है. लेकिन द वे ऑलरेडी द स्टॉक्स हैव फॉलन, ऐसा नहीं है कि निफ्टी अगर 16,000 पे ही है तो स्टॉक्स भी नहीं गिरे, ऐसा नहीं. स्टॉक्स भी गिर चुके हैं, काफी सारे गिरे स्टॉक्स.
एंड दे हैव फॉलन टू देयर एक्सट्रीम लेवल्स। हमने सोचा ही नहीं था कि लाइक मेटल स्टॉक्स इतने गिरेंगे या तो मे बी ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स इतने गिरेंगे, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स गिरे, इवन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल। सो बचा क्या मार्केट में? सो मे बी रिलायंस या तो मे बी आईटीसी जैसे स्टॉक्स है कि जहां पे हमने देखा कि मोमेंटम स्ट्रांग था और इसके लिए मार्केट ऊपर के ऊपर लेवल पे था, लेकिन अदरवाइज स्टॉक्स ऑलरेडी हैव करेक्टेड। सो जुलाई अगस्त ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड रहेगा जहां पे हमें लगता है कि कुछ बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। सर, regarding Nifty, any specific level that you are observing for reversal or 200-day DMA? Can traders assume that about 200 DMA? Because lots of time when the 200 DMA cross, the reversal most of the time continue. Correct. So what's your take on that? 200 DMA is at 17,200 levels. Yes. Until the market is below 200 days simple moving average, I think it is going to remain under pressure. Yes. But if it starts sustaining above the mark of 17,200, then we can expect further more upside. So what you're saying is right. कि अगर थोड़ा अर्ली मुझे मार्केट में बुलिश होना है तो मार्केट को फिर एक इंडिकेशन देना पड़ेगा, और वो इंडिकेशन यही रहेगा कि मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है अबव द लेवल्स ऑफ सिंपल डेज 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स, काफी सारे फंड्स इस पर्टिकुलर एवरेज को ट्रैक करते हैं, और अगर मार्केट भी अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर मोर अपसाइड। या यस सर। Thank you, sir. So the next question is, how do one participate in wider number of research recommendations generated by Kotak? So wider number of research recommendations के ऊपर अगर फोकस करना है तो वेरी फर्स्ट ट्रेडर को फोकस्ड बनना पड़ेगा। सी ऐसा नहीं है कि कॉल्स आते जाएंगे और आप जस्ट उसको देखोगे और ट्रेड कर लोगे। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खुद का एक बास्केट होना बहुत जरूरी है। सी हम लोग तो फॉर एग्जांपल 10-15 स्टॉक्स में आपको रिकमेंडेशंस दे देंगे, लेकिन आप कितने स्टॉक्स के ऊपर काम करोगे? करेक्ट। तो वो भी एक ऑलवेज सवाल होता है, और इसी वजह से हमने बोला कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि अगर रेटिंग मॉनिटर अगर आ रहा है तो मुझे काम करना है, अगर अपॉर्चुन आ रहा है तो मुझे काम करना है, अगर मुझे टेक्नो फंड आ रहा है तो मुझे काम करना है टेक्निकल्स की तरफ से, राइट। और अगर मुझे इंट्राडे में अगर कोई ट्रेडिंग कॉल अगर आ रहा है एंड इफ आई एम कंफर्टेबल विद लेट्स से फॉर एग्जांपल विद रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पे अगर कॉल आ रहा है तो मुझे उसमें एग्रेसिवली काम करना है। आपका खुद का एक बास्केट होना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन दी वाइडर स्पेक्ट्रम और वाइडर रिकमेंडेशंस दैट वी प्रोवाइड। ओके, सो कैसे होता है कि बहुत सारे कॉल्स पे काम करना इज नॉट दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप दिन में अगर 3 से 4 कॉल्स पे भी अगर आप काम कर लेते हो विथ कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कि दैट इज मोर देन इनफ। और हम लोग काफी सारे कैटेगरीज में काम करते हैं। 5 डेज में भी आ रहा है, 20 डेज में भी आ रहा है, इंट्राडे में भी आ रहा है। तो आप कौन से कैटेगरी के साथ कंफर्टेबल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है। करेक्ट तन्वी? सो आपके यूजर्स को मुझे ये बोलना है कि आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है। आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपका ब्रोकरेज, आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है वो कितना है। आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अभी बहुत कम हो चुका है। आपको ऑलवेज वो पता होना चाहिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर एंटर करता हूं, इसमें मुझे अगर मोमेंटम आफ्टर पेइंग द ब्रोकरेज अगर मुझे कुछ मेरे पैसे बन रहे हैं तो आप उसमें से इमीडिएटली निकल सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए। और वो स्टॉप लॉस कैसे छोटा होगा कि अगर आपको बाकी के कॉल्स में अगर काम करना है तो यू कैन कंसिडर ऑलवेज टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस यानी क्या है? आप ट्रेड में एंटर कीजिए, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, 60 मिनट्स के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। आई मीन टू से 60 मिनट्स मैक्स। 60 मिनट्स के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है एट एनी कॉस्ट। सो जैसे आपने ट्रेड में एंटर किया, अगर आपने 11:30 बजे ट्रेड में एंटर किया है, 12:30 बजे तक अगर वो स्टॉक अगर आपके फेवर में नहीं आ रहा है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। वो ट्रेड या तो बिकॉज ऑफ सम रीजन फेवर में नहीं आ रहा है, या तो देयर इज सम प्रॉब्लम। सो इट्स नॉट दैट कि एनालिस्ट का कोई प्रॉब्लम है, बट ये होता है कि समटाइम व्हाट हैपेंस कि इंट्राडे में अगर हम लोग कुछ ट्रेड्स डालते हैं लेकिन अचानक से यूएस फ्यूचर्स नीचे आ जाते हैं, या अचानक से कुछ कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कुछ ट्विटर आ जाता है किसी के पास से, या कोई कंपनी कभी कुछ अनाउंसमेंट कर देती है, तो स्टॉक नहीं चलता है। सो उस केस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है।
और मैं हमेशा मेरे वेबिनार में एक बात बताता हूँ कि आपके पास कुछ ना हो तो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो आप मैक्सिमम कॉल्स में काम कर सकोगे। प्लस जो हमारे वेबिनार्स होते हैं तन्वी, और भी आने वाले फ्यूचर्स में हम लोग रखेंगे वेबिनार, हम लोग कुछ स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी रखेंगे, आप उसे अटेंड कीजिए। यू कैन इंक्रीज योर स्किल इन द मार्केट, ओके, हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट। सो हम लोग वो भी कुछ आने वाले दिनों में कुछ रखेंगे। एंड अगर वो सब सेशंस अगर आप अटेंड करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे विद द रिसर्च टीम ऑफ कोटक, विद द रिसर्च ऑफ कोटक, एंड आई थिंक देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ अस। Yeah, so there's one more question which is very interesting. The question is, can you explain how trader can use risk reward ratio? So Amol, can you put some light? You can throw Yes. some light on it. Yes, sure. I think for the traders, yes, it's a very important question for all the traders. Day traders, positional traders, short-term traders, the risk to reward, because it's there are two ways. I think the important ways. One, you can win the game with the help of risk to reward, or you can win the game with the success ratio. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही आप कहीं ना कहीं विन होगे आगे जाके भी, और यही प्रॉमिसिंग है। बट देन ये क्वेश्चन आता है कि क्या रिस्क मेरे लिए अच्छी होगी, या कौन सा रिस्क लूँ तो कौन सा रिवॉर्ड पॉसिबल भी होगा। अगर मैं 3% का रिस्क लेता हूँ तो 7% डे ट्रेडिंग में गेन करना या 5 डेज में गेन करना वुड बी द हेरक्यूलियन टास्क। समटाइम इट्स अचीवेबल, but probability wise it could be the difficult for the to handle. So I think for me, I think for the those who are day traders, I think the stop risk 1 to 1.5% is enough. I think if you're a short term trader, I think then 2 से 2.5% तक का रिस्क आप उसमें देख सकते हो। अगर आप जैसे टेक्निकल पोजिशनल जो हमने कैटेगरी किया है, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, मतलब 1.5% नहीं है, 2% नहीं है, समटाइम 3 to 4% का स्टॉप लॉस है। बट अगर आप उसका वो ट्रेडिंग पैटर्न देखोगे तो वो 20 दिन 25 दिन का पैटर्न है, और उसका रिवॉर्ड भी काफी बड़ा है। सो आई थिंक टू आइडेंटिफाई द राइट रिस्क टू रिवॉर्ड, पहला तो चीज आपको पता होना चाहिए कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है। डे ट्रेडर के लिए मुझे लगता है कि एक आइडियल 1 to 1.5 अच्छा रहता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप 5 दिन के लिए कर रहे हो, 6 दिन के लिए कर रहे हो, देन आई थिंक 2.5% ये एक अच्छा रहेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप पोजिशनल हो, जैसे मंथली कैरी करते हो, आपके पोजिशन बड़े ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 4 to 5% वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर द ट्रेड। अगेन उसमें एक ही कैच है कि जहाँ पे जैसे अनसर्टन इवेंट कोई भी आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाते हैं, जहाँ पे वोलेटिलिटी काफी चेंज हो जाती है, वीक्स काफी बढ़ जाता है, जहाँ पे मार्केट 300-400 पॉइंट चलता है, वहां पे आपका थोड़ा सा हिट आएगा, आपका सक्सेस रेशो थोड़ा कम आ सकता है। बट आई थिंक द डिसिप्लिन इज द बेस्ट वे। सो आई थिंक ये 3 है जो एवरेजली अगर आप देखोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग रेशियोज है जो वर्क होने चाहिए, ऐसा हमको लगता है। Thank you, Amol sir. There's one more question, which is, can one use playbook for taking options position? Yeah, for taking option positions, certainly they can use, but all these levels that we are giving in the playbook, they are based on the cash levels. Okay. So we have to monitor the cash levels very first, that whether the, for example, the Reliance, and in that also, what you can do is that you can use the extreme levels. Okay. So on which we discuss, and let me share if it is possible for me. Yes, it's possible. Okay, so those who really want to take some trades in the option segment with the help of trading playbook, for them, the advisable thing is that to focus on the extreme levels which are given in the table, which are given in the playbook. So, for example, if I really want to take any trade in the stock like Reliance Industries, then in case if it falls to 2684, which we have mentioned in the report. So if it falls to the 2684 levels, there you can look for adding some call options. Correct. Why call options? Because the overall trend of the stock is showing strong. Mm-hmm. So because the trend is strong, ideal strategy should be to look for adding call options.
And see, whenever there is a panic sort of situation in the market, if you take contra trade with certain risk, with certain stop loss, most of the time it works. But then we need to know that whether these levels are right or wrong, whether I'm taking the right trade or not, whether all these current levels are at are support levels for the stock or not. So all these things are there in the report. Only thing is what, आप मॉर्निंग में इसका प्रिंट आउट लेके बाजू में बैठ जाओ, जो आपके स्टॉक्स फेवरेट है आप उसे हाईलाइट करके रख दो, एंड जो उसके एक्सट्रीम लेवल्स है उसको आप सर्कल करके रख दो. बहुत सिंपल है, मैं यही करता हूं. और अगर मुझे लगता है कि स्टॉक वीक हो रहा है काफी, और सॉरी वीक ट्रेंड में चल रहा है, और वो स्टॉक अगर रिबाउंड कर रहा है अच्छे मार्केट में, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है, अगर ये 2330 2350 के रेंज में अगर आता है तो पुट ऑप्शन ले लो, इमीडिएटली आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा. लेकिन बिकॉज यू आर टेकिंग ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस, यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर इट्स अ इंट्राडे ट्रेड, इट्स नॉट अ पोजिशनल ट्रेड. सो आपको इंट्राडे में ट्रेड लेके इंट्राडे में उसको फिनिश कर देना है, बिकॉज कल के दिन में ये टेबल वापस चेंज होने वाला है. यही सेम टेबल आपको कल परसों उसके बाद डे आफ्टर नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा, टेबल हमेशा चेंज होगा. यू आर गेटिंग मी. सो तन्वी, आप मीन्स जो भी यूजर है अपने, जो भी क्लाइंट्स है, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेबल रेगुलरली चेंज होता है, और आपको इंट्राडे ट्रेडर है वो ऑलवेज एक माइंड में रखने की बहुत जरूरत है. सी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर भी जो बात हुई थी, हम लोग यही बताते हैं कि आपको इंट्राडे में स्कैल्पर्स होना चाहिए. यानी क्या है कि फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, अपॉर्चुनिटी बेस्ड होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बेस्ड. अगर आप इंट्राडे में पोजिशनल का व्यू रख के काम करोगे तो नहीं चलेगा. इवन दो इट्स अ पोजिशनल कॉल ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको देखना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी उसमें क्या है. सो आफ्टर एंटरिंग इनटू द ट्रेड एट 2770, इफ आई एम गेटिंग द एग्जिट एट 2790 which is 20 rupees, after paying brokerage and everything, if I am earning 10 rupees, then also it's fine. So scalping करना इस बहुत जरूरी है, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत जरूरी है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको जस्ट कुछ सपोर्टिंग टूल्स की जरूरत होती है. और इसी वजह से आज के शो में हम लोगों ने स्पेसिफिकली सपोर्टिंग टूल्स दिए हैं कि जो आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन इंक्रीज योर स्किल टू ट्रेड इन द मार्केट. या तन्वी. Thank you, sir. So this is the last question of the session. Is there any report which combines both fundamental and technical aspects for short term? For short term? Yeah. No, for short term, see, like as a Kotak, we always try to give buy calls in those companies which are really strong in terms of fundamentals. ओके, सो अगर हमें बाय कॉल करना है तो हम जाके कुछ बहुत सारे कॉल्स अडानी में नहीं देते हैं, बिकॉज उतना हमारे कवरेज में नहीं है, या बहुत सारे कॉल्स हम उस सेक्टर में नहीं देते कि जो हमारे कवरेज में ज्यादा नहीं है, जहाँ पे हमारे कुछ सेल रिकमेंडेशन चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि औरोबिंदो फार्मा है जो हमारा सेल चल रहा है कंसिस्टेंटली, अभी बाय में आया है, लेकिन लुपिन लेबोरेटरीज है, बहुत ऐसे सारे स्टॉक्स है कि जहाँ पे कुछ सेल रिकमेंडेशन चल रहा है, उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं बाय कॉल देने का. ऐसा नहीं कि बाय कॉल नहीं देते हैं, लेकिन वी ट्राई टू कवर दोज कंपनीज विच आर फंडामेंटली रियली स्ट्रॉन्ग. सो आप ऑलवेज ये कंसिडर करके चलो कि जो भी हमारे कॉल्स आ रहे हैं, दे आर टेस्टेड बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स also. Anything else you want to add, Amal? No, I think fair enough. Yeah, Tanvi. That was the last question of the session, sir. Thank you so much for this insightful session. Thank you for your time, Shrikant sir and Amol sir. Thank you for being here. And a big thank you to all the participants as well. Stay tuned for more such webinars. We'll be again and again conducting many such research webinars as well. See you soon on the next one. Till then, take care and stay safe. Thank you. Thank you. Thank you so much.